Come on, church, shout a big hallelujah. जोर से चिल्लाएं हालेलुया। You know, our God is a God who works miracles into our lives. और वो परमेश्वर हम सेवा करते हैं जो बहुत ही चमत्कार हमारे जीवन में करते You know, हैं। it's our privilege that you and I, we belong to Him. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस परमेश्वर के लोग हैं। You know, you and I, we are not here by any accident or any because somebody has forced us to be here. You and I, we are here because it is God's plan for you to be here. और आज इस सुबह हम लोग ऐसे ही यहाँ पे नहीं हैं या किसी ने हमें दबाव दिया कि यहाँ पे आने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। Hallelujah. You are not by an accident over here. और आप ऐसे ही नहीं आए हैं यहाँ पे। I am not by an accident over here. और मैं ऐसे ही यहाँ पे नहीं आया हूँ। But it is God's plan for you and me to be here. लेकिन ये परमेश्वर की योजना है आपके और मेरे जीवन में यहाँ पे आने के लिए। You know, Pastor told me few weeks back about sharing this Sunday. और पासवान ने मुझे कुछ हफ्तों पहले मुझे आज के इतवार के बारे में I कहा was था कि thinking कुछ बोलने what के to लिए। share. और मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं। You know what to talk. और मैं किसके बारे में बात करूं। You know, last Friday we had a night prayer. और पिछले शुक्रवार को रात का हमारा जो मध्यस्थी प्रार्थना हुआ। And in that night prayer, the most of the topic what we were talking about the Holy Spirit and Holy Spirit to be glorify us, Holy Spirit to do work through us, Holy Spirit bring into the life of the people. और ये जो शीर्षक था जो पवित्र आत्मा के बारे में है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, इसी के बारे में शीर्षक था। And I've been thinking about this for quite a long time. और मैं इसके बारे में काफी दिनों से मैं सोच रहा था। You know, as I told you, we are born again. और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो पुनर्जन्म हुआ है, Is only born again is only the last point that God has called us. Is born again only the last thing that God has called us. क्या विश्वासी होने का मतलब ये कि एक अंतिम पड़ाव है जो चुनाव या बुलावा है उसका। And now I am born again. Now I am going to go to heaven. और मेरा एक वापस एक पुनर्जन्म हुआ प्रभु में, तो ये क्या मेरा मुझे वापस जाना है? Enough. That is all enough. क्या ये काफी है ये? Only that is for what God has called me to do. और क्या केवल परमेश्वर ने मुझे इसी के लिए ही बुलावा दिया है? You know, church, listen to me. कल से मेरे ध्यान से सुनिए मुझे। Born again is just the beginning your walk with the Lord actually. और ये पुनर्जन्म प्रभु यीशु मसीह का ये मतलब है कि प्रभु के साथ चलने के बारे में। Born again is just the beginning for what God wants to do in your life and through your life. और नया जीवन का ये मतलब कि परमेश्वर कुछ अपना कार्य हमारे जीवन में, आपके जीवन में करना चाहते हैं। You know, many of us we think like that no, only there are few people who are called to be served. और कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ चंद लोगों को ही परमेश्वर ने बुलाया है उसकी सेवा करने के लिए। Many a time I also used to think like that. There is only few people, like the pastor has to have full-time people only the people who lead worship, only they have called to be served God. और मैं भी ऐसे ही सोचता कि पासवान लोग या जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, ये जो आराधना मंडली है, उन्हीं को बुलाया है कि प्रभु की सेवा करने के लिए। You know, but as I started reading the Bible, लेकिन जैसे मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, I found there was a man called Paul who was making tent and who was serving the Lord also. और मैंने देखा कि जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा पौलुस करके एक व्यक्ति था जो घरों को भी बनाता था, प्रभु की सेवा भी करता था। It's not only people who are called to be full time, they only have to serve the Lord. No, that is absolutely wrong. और ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं वो फुल टाइम होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है, वो गलत है। But it's a call for each and everyone, whichever position we are, wherever we are working, whatever we are doing, is we have to work and we have to serve the Lord also. और हालांकि हमारी कोई भी पदवी क्यों ना हो, जहां भी हमें नियुक्त किया गया, लेकिन हम सभी को परमेश्वर प्रभु की सेवा करना चाहिए। But one thing is very, very clear that we all have to serve God. और एक बात स्पष्ट है कि हम सभीयों को प्रभु की सेवा करना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You might say, no, I don't know anything. I have not been to the Bible school. I have not done my Bible study. I have not done this thing. I have not that thing. Can I serve the Lord? आप सोचेंगे कि मैं शायद बाइबल स्टडी नहीं किया या बाइबल कॉलेज में नहीं किया, क्या मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूं कि नहीं? You know, if you read the Bible, there was a man in the Bible called Peter. और ये हम जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति का नाम था पतरस। You know who was a fisherman. आपको पता वो कौन था? एक मछुआरा था वो। You know, if you read the book of Acts, the Bible talks about that when the Holy Spirit came upon him, he spoke, and 120 people he spoke over there, and people gave their life to the Lord Jesus और वहां पे Christ. लिखा जब पतरस ने जब बात किया पवित्र आत्मा के द्वारा 120 लोग परमेश्वर प्रभु में आ गए थे। Hallelujah. हालेलुया। So you do not underestimate yourself and ourselves. अपने आप को ना इतना नम्र मत करना,
इतना ये नहीं समझते कि मैं कुछ नहीं कर That पाऊंगा। I can't do anything for the kingdom of आप God. ये मत सोचिए कि प्रभु के राज्य के लिए मैं कुछ नहीं कर You पाऊंगा, know, we need to be available for God. लेकिन प्रभु के राज्य के लिए हमें खड़े रहना है वहां पे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You and I, we need to be available for God. When you and I, we are available for God, God will use you and we will see that we serve God. हमें और आपको प्रभु के लिए तैयार होना है, हम वहां पे खड़े रहे और परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमारे इस्तेमाल करेंगे। So God has called you and me to serve Him. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे उसकी सेवा करने के लिए बुलावट He दिया has है, anointed you and me. और परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषेक किया है। But now very important thing is that from where do I start this thing? लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कहां से शुरू करूं उसको? And how do I see this anointing of God which God has anointed me? How should I see this grow in my life and your life? और मुझे इस बात को समझने की परमेश्वर का जो अभिषेक को मैं कैसे समझूं कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया और कहां से शुरू करूं? You know, this morning I'm going to bring very simple thing to you, my church. और कल से मैं सुबह की बात आपके सामने बहुत ही साधारण रूप से कुछ रखना चाहता You know, हूं। you might think so many years I've wasted my time. How, from where do I start to serve God? और आप सोचें कि मैंने इतने सालों को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं परमेश्वर की सेवा करने के लिए? Acts chapter 10 verse 38. Acts chapter 10 verse 38. प्रेरितों की किताब 10 verse 38. उसका 10वां अध्याय उसका 38 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Amen. Okay, he said God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit with power and went on doing good. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता रहा। Now let me ask you something. Has God anointed each and every one of us? क्या आगे सवाल पूछे क्या परमेश्वर ने आप सभी को अभिषेक किया है? Hello. Yeah. God has anointed each and every one of us. हाँ, कि परमेश्वर ने हम सभी को अभिषेक किया है। We all been baptized with the Holy Spirit. हम सभी लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है। You know, we all have been baptized with the Holy Spirit. हम सभी लोग प्रभु पवित्र आत्मा के उससे बपतिस्मा ले चुके हैं। Is the Holy Spirit which is there in Jesus, the same Holy Spirit is which is in you and me also. और जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर भी है। Now the question comes, what did Jesus did when he was anointed with the Holy Spirit and with the power? और हमें ये बात समझने की यीशु मसीह ने क्या किया जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा था और जब सामर्थ था। I don't see the Bible says now God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. और मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने कि यीशु मसीह के नासरत को पवित्र आत्मा से सामर्थ दिया And with power. और सामर्थ से भर दिया। Now after having this anointing and this power, what did Jesus do? और ये पवित्र आत्मा आने के बाद, सामर्थ आने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? Did Jesus went into the room and took a nice Coke and just went on put his AC on and put his leg on the couch and was sitting over there? क्या यीशु मसीह ने अपने कमरे में गए, एक कोक को लिया, एसी ऑन किया और अपने पैरों को ऊपर रखा, ऐसे ही बैठे रहे वो? And just tell certain people, God anointed me, God anointed me, God anointed me. और केवल ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, मुझे अभिषेक किया। Jesus did that way? क्या यीशु मसीह ने ऐसे किया? No. नहीं। The Bible says पवित्र शास्त्र कहता है Jesus went on doing good. कि पवित्र लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह था वो अच्छे काम, भलाई काम करते रहे। And healing and all that were pros of the devil, and God was with him. और वो जो शैतान से सताए हुए थे उनको अच्छा करते रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। Hallelujah. God anoints you and me. परमेश्वर आपको और मुझे अभिषेक करता है, Not to just for the name's sake and the fame's sake. केवल नाम के लिए नहीं या तो हमारी बड़ाई होने के लिए He नहीं, anoints you and me to keep on doing good. केवल इसीलिए परमेश्वर हमें अभिषेक करते हैं ताकि हम जो भलाई का जो काम है हम लोग करते रहें। He anointed us so that we can heal the people, ताकि हम लोगों को हम लोग चंगाई प्रभु के नाम से दे and सकें, that all who are oppressed by the devil, और जो लोग जो शैतान से जो सताए गए to लोग हैं deliver them, उनको छुटकारा दे, because God is with you and God is with me. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
Jesus didn't just kept quiet over there. और यीशु मसीह केवल वहीं पे चुप नहीं बैठे No, he didn't just sat over there. और केवल वहां पे बैठे नहीं रहे, But he went on doing good. लेकिन वो भलाई का काम करते He रहे went on, kept on, keep on praying for the people, and people were getting healed. और जो लोगों के वो छुटकारा देते रहे, चंगाई देते रहे, वो करते रहे ये भलाई का काम, He went on doing good. और वो हमेशा भलाई का काम करते रहे। Look further. हम आगे पढ़ेंगे। So many of us, और हम में से काफी लोग, we are filled with the Holy और Spirit. हम लोग पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरे हुए Many हैं। of us, हम में से काफी we are लोग, born again. और हम लोग नया जीवन पाए हैं, Many of us, we speak in tongues. और काफी लोग जो पवित्र आत्मा में जो अन्य भाषा में बात करते हैं। Many of us, we have these goosebumps and we say, oh, my hair is getting standing up. और हम लोग कई बार कहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना होता है कि जो मेरे हाथों के जो बाल खड़े हो जाते We हैं, clap hands, we dance before the और Lord, हम ताली बजाते हैं, नाचते हैं, and then we do nothing. और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते। Having an encounter with the Lord is important. और परमेश्वर के सामने आमना सामना होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, It's important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात But है। what after that encounter is very, very important. और ये परमेश्वर के साथ आमना सामने होने के बाद की जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण I है। was just thinking Moses had an encounter with the God. Moses spoke to God face to face. और मैं सोच रहा था कि मूसा जो था परमेश्वर के सामने आमना सामना खड़ा रहा, उसने बात किया, He spoke to God face to face. और उसने परमेश्वर के सामने उसने बात किया। What did he did after that? उसने क्या किया उसके He बाद? didn't just do the wow, what an experience I had. He goes back and start doing his own things. और उसने ऐसे नहीं किया कितना अच्छा अनुभव हुआ और अपने घर पे गया और अपना काम करता रहा, ऐसे नहीं किया We उसने। come to Sunday, we experience God's presence into our life. We have an encounter with the Lord, and after going back, we go back to Sunday, Monday morning, we are back into our routine. Again next Sunday with the Lord. और हम रविवार को आते हैं, प्रभु के अभिषेक से भरते हैं, घर जाते हैं, और वापस जो सोमवार आते हैं हम अपने कामों में लग जाते हैं। We need to have everyday encounter with the Lord. और हर प्रतिदिन परमेश्वर के सामने उनका आमना सामना हमारा होना I चाहिए। always say, मैं हमेशा कहता हूँ, we don't want Sunday to Sunday Christians. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जो इतवार से इतवार का जो मसीह वाले जो लोग हैं, हमें वो नहीं We चाहिए, don't want that. हमें वो नहीं चाहिए। We should be a man and woman of and Christian of every day, और walking a walk with the Lord. लेकिन हम वो पुरुष और वो स्त्री बनना चाहिए जो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हम चलें। What should we do when we have the anointing of God in our life? हम क्या करेंगे जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आएगा? You know, there is a biblical principle which says here like this. और यहाँ पे एक हमारे जो पवित्र शास्त्र के अनुसार एक सिद्धांत है, You know, my topic today is that using what we have. और मेरा आज का शीर्षक है जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल कैसे करें। Using what we have. जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल कैसे करें। You know, use what you have. उसका इस्तेमाल करो जो आपके पास है, Otherwise, you will lose what you will have. और क्योंकि जो उसको आप खो देंगे जो आपके पास है। If you don't use what you have, you will lose what you have. अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते जो आपके पास है, तो आपके पास जो है आप उसको खो देंगे। That's why it's very important to use what we have. और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस चीज को समझने के लिए कि आपके पास जो है उसके इस्तेमाल करना। Are we people who are called by God? और जो लोग प्रभु के बुलावट में आए हैं, Are we waiting for something to do for the Lord only when we see a white horse coming, a white horse syndrome coming, and God saying to me, oh, do something, get up, go, do something. क्या आप तभी कुछ करेंगे जब आप बादलों में एक सफेद घोड़ों को देखेंगे और या परमेश्वर आके आपको बोलेंगे आपको कुछ करना, उठो अभी? No, the Lord has to come on the white horse. I have to see that white horse, Lord coming on the white horse, and Lord has to tell me, then only I will do something for the नहीं, Lord. जब तक मैं नहीं करूंगा, जब तक मैं बादलों में मैं उस सफेद घोड़ों को नहीं देखूंगा, या जब तक परमेश्वर मुझसे नहीं बोलेगा करने के लिए, तब तक मैं नहीं करूंगा। Are we waiting for that kind of vision from God? क्या हम उसी के लिए हम प्रतीक्षा में रुके हैं परमेश्वर से? Let me tell you one thing. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। If that white horse comes also, he tells you to do something, still you will not do. मैं कहना चाहता हूं अगर सफेद घोड़ा भी अगर नीचे आपसे कुछ करने के लिए बोलेंगे करने के लिए, आप लोग नहीं करेंगे। Because God has told us what to do in His word. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कहा है कि तुम्हें क्या करना है अपने वचनों के द्वारा।
He has already told you and me what to do. It is written in the word. So और आप- don't wait for the White House to come. और परमेश्वर ने हमें पहले से योजना दिया या क्या करना है अपने वचनों के द्वारा। हमें सफेद घोड़े के लिए हमें उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं You know, है। then only I will go and preach the gospel. उसके बाद ही मैं जाके प्रभु का मैं इस वचन को बांटूंगा। Only when I see the White House and from White House somebody says go, then only I will go. जब तक मैं सफेद घोड़ों को नहीं देखूंगा या तो कोई मुझे बोलेगा जाने के लिए तभी जाऊंगा, ऐसा नहीं है। I'm waiting for last 15 years. और मैं पिछले 15 साल से रुका हुआ हूँ Things are not happening. और जैसे मेरे जीवन में होना चाहिए बातें वो नहीं हो रही, I'm waiting for that White House to come. लेकिन मैं उस सफेद घोड़े के लिए अभी भी रुका हूँ। We've been born again for so many years. हमने नया जीवन पाया है काफी सालों से। Has God called you and me just for a daily routine or to do something for His kingdom? कि परमेश्वर ने कि आपको और मुझे ऐसे ही बुलाया है कि केवल जो रोजमर्रा की जो जिंदगी का जो दिनचर्या का काम है उसको करने के लिए ही बुलाया है। Church, I want to tell you this morning. कलीसिया में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सुबह के वक्त। What you have, जो आपके पास है, if we not use, if we don't use it, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर we रहे, will lose it actually. आप उसको खो देंगे। The anointing of God which is in your life and my life, if we don't use it, अगर जो प्रभु का जो अभिषेक आपके और मेरे जीवन में अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, see, God anointed you and me not just for myself. God anointed for you and me for the others actually. और एक अगर देखा जाए कि परमेश्वर ने हमारा जो अभिषेक है केवल हमारे लिए नहीं किया लेकिन दूसरों के लिए हमें किया, हमें If we have तैयार किया। received Jesus long time ago, if we have received Jesus long time ago, अगर प्रभु यीशु मसीह को काफी सालों से अगर आपने उसको उद्धारकर्ता माना है and we have not done anything, और हमने कुछ नहीं किया, that's the reason we don't see miracles and healing happening actually. और इसी वजह से इसी कारण से हम लोग प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को हम लोग अपने जिंदगी में नहीं देख सकते, We see into the other life, people's life. और हम दूसरों के जीवन को देखते हैं We see so many things happening. और हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है Why not is happening in my life? और मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। Maybe my God is a partiality God. और शायद मेरा जो परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर है, Absolutely wrong. ये गलत है। He is the same God for every one of us. और वो एक ही परमेश्वर सभी के लिए एक समान है। We don't see what miracles, we don't see healing happening. The reason is that we don't use what we have. हम प्रभु के उस चमत्कारों को नहीं देख सकते क्योंकि जो हमारे पास है हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। I want to tell you a story from the book of the Bible. और मैं एक पवित्र शास्त्र से एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 Kings chapter 2 verse 2 onwards. और दूसरा राजा का दूसरा अध्याय और उसका दूसरा वचन से, Yeah, 2 Kings chapter 2 verse 2 onwards. दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन से। We all know the story of Elijah and Elisha. और एलीशा और एलाइजा के बारे में इस कहानी को हम जानते हैं। You know, and the Bible talk about that Elisha was the assistant. Elisha was the assistant of Elijah, और हम जानते हैं कि एलीशा जो था एलाइजा का जो असिस्टेंट था, and he knew, Elisha knew that his master is going to go leave him and go to heaven. और वो जानता था कि उसका जो स्वामी है वो इस धरती को छोड़कर वो स्वर्गलोक जाने वाला है। Now the Bible says, then Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray you, for the Lord has sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. So they went down to Bethel. और यहाँ पे इसमें दूसरा वचन में लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का, इसीलिए वे बेतेल को चले गए। Verse 3 says it like this. और तीसरा वचन ऐसा कहता है, And now the sons of the prophets who were in Bethel came to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? And he said, I know. Keep silence. और तीसरा वचन में लिखा है, और बेतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। Verse 4 says like this. और चौथा वचन ऐसे Then लिखा है, Elijah said to him, Elijah, stay here, please, for the Lord has sent me unto Jericho. But he said, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. So they came to Jericho. Verse 4. और चौथा वचन में लिखा है, और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा,
यहोवा मुझसे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और सो वे यरीहो को आए। Verse 5. पांचवां वचन। Now the sons of the prophets who were at Jericho came to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? So he answered, yes, I know. Keep silent. और पांचवें वचन के लिखा है कि और यरीहो वासी भविष्य वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुम्हें मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे ये मालूम है, तुम चुप रहो। Verse 6 like this. Elijah said to him, stay here please, for the Lord has sent me on to the Jordan. But he said, as the Lord lives, as your soul lives, I will not leave you. So the two of them went on. छठे वचन में लिखा है, और एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है और तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। No, Elisha was every time following Elijah. Wherever Elijah used to go, Elisha used to follow him. और एलीशा जो था वो अपने स्वामी एलीशा के पीछे हमेशा रहता था। Now Elijah told Elisha, you stay back, you don't come with me. He said, no, I want to be with you only. I want to go with you only. और एलीजा ने एलिया से कहा कि तुम वहीं रुको, मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन एलिया कहता कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। Not only he knew, but there are other people also at Jericho and Bethel knew that Elijah is going to go to heaven. केवल एलिया को ही नहीं पता था, लेकिन बेतलवासी और जो दूसरे जो है उनको भी पता था कि वो स्वामी को उठा लिया जाएगा। This chapter goes on like that. और ये जो पंक्ति ऐसे आगे बढ़ता And है, the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, Elijah rolled up his cloth. Elijah rolled up his cloth. और एलीजा ने जो अपने जो कपड़े हैं उसको बांध लिया, And he struck the water और उसने उस पानी के ऊपर मारा, of the river, और उस नदी के ऊपर, Jordan over there. और यरदन नदी में The water parted into two over there. और जो पानी था दो भाग में हो गया, And there was a dry land. और वहां पे एक सूखा जमीन So था। Elijah and Elisha crossed the Jordan River. और एलीशा जो एलिया है, दोनों वो जो नदी है उसको पार कर रहे हैं। Now Elijah and Elisha, when they crossed the river, और जब एलीशा और एलीशा जब जो उस नदी को पार कर रहे थे, now Elijah was seeing that this man is not going away from him. After telling him so many times, अरे बाबा जाना, रे बाबा जाना, क्यों मेरे पीछे आता है? मेरा ही खाने का वांदा है, तेरे को कहां से खाना दूं रे भाई? Elisha is saying that to Elijah, why you following me? Just move away. I have a tough time to feed myself. You following me now for what reason? Why are you coming behind me? और आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? But Elisha knew it. और एलीशा को ये पता था। This my master is going to be taken away. और एलिया को पता था कि मेरा जो स्वामी है उसको ऊपर उठा लिया And जाएगा। what he has, I wanted that now. और जो उसने किया वो मुझे पास है। And now Elisha must have got worried. Elisha must have got really fed up. And Elisha asked Elijah finally, what do you want? और फिर एलीशा ने एलिया से कहा कि मैं थक चुका, तुझे मुझसे क्या चाहिए? What do you want? तुझे मुझसे क्या Why are चाहिए? you coming behind me? तू मेरे पीछे क्यों आता है? The Bible says in verse 9. और पवित्र शास्त्र 9वें वचन में कहा, And so it was, when they had crossed over, Elijah said to Elisha, ask, what may I do for you? 9. उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उसने पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, मुझे तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। This question what Elijah asked to Elisha, I really liked it. What do you want me to do for you? मैं जानता हूं कि मुझे अच्छा लगता है पूछते कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। When I come back to the New Testament in the Bible, in Mark chapter 10, there is a blind man, Bartimaeus. He wanted to be healed. Jesus asked me, what do you want me to do for you? और नया किताब में लिखा है जो एक अंधा व्यक्ति था बार्तिमेउस, और उसमें यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। Elijah is asking Elisha over here. और एलीजा जो है एलिया से कहते कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। Elisha could have asked anything from Elijah. और एलीशा कुछ भी पूछ सकता था, एलिया कुछ भी पूछ सकता But था। the Bible says, लेकिन पवित्र शास्त्र Elisha said, let the double portion of your spirit be upon me. Same 9th verse. और इसीलिए एलीशा ने कहा कि जो आत्मा है, एलीशा ने कहा जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। Verse 10.
10वां वचन पढ़ेंगे। He said, "You have asked a hard thing." और एलिया ने कहा कि तूने कठिन बातों को मांगी है। You have asked a hard thing. तुमने बहुत ही कठिन बातों को मांगी है। Nevertheless, if you see me, अगर यदि तुम मुझे उठा लिए जाने के बाद तुम देख पाओ, when you see me taken away, अगर तुम मुझे देख पाओगे जब मुझे उठा लिया जाएगा। listen to me, church. ध्यान से सुनिए Many a कलीसिया। time we pray to God. और हम कई बार हम प्रार्थना करते हैं। Many a time we ask so many things from God. और कई बार हम काफी सवाल पूछते हैं Many a परमेश्वर time से। we try to focus our eyes onto God. We ask God things into our lives and our lives. और कई बार हम अपने आंखों को प्रभु की ओर लगाते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु से। But most of the time, लेकिन काफी समय में when we ask things from the Lord, और जब प्रभु से मांगते हैं, you know, we look here and there for the provision rather than focusing our eyes towards God. हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, भटकते हैं, सोचते हैं कि वहां से आ जाएगा, लेकिन हमारा जो नजर है प्रभु की ओर होना चाहिए। You know, our eyes is not on the Lord when we ask something from the Lord. लेकिन जब हम मांगते हैं, हमारी आंखें जो प्रभु की ओर नहीं होती, We look to here and there for the source of our life. और हम लोग इर्द गिर्द यहाँ वहां देखते हैं ताकि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए। Your source and my source of everything is God and God and God alone. और मेरी जो हर जो जरूरत है जो मेरे जीवन में होगा, यहाँ वहां से नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की ओर से आता Elijah है। is telling to Elisha. Elijah is telling to Elisha. एलिशा से कहता है, You know, you have asked a hard thing. और तुमने बहुत ही कठिन बात मेरे से मांगी है, Nevertheless, और फिर भी if you see me अगर तुम मुझे देखोगे, when I am taken from you, और अगर देखोगे मैं उठा लिया जाऊं जब, it shall be done unto you. और ये जो बातें तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। When you and I we ask something from the Lord, let us focus our eyes only on God, because He is the source to give what you have asked. He is the source to give what you want. और परमेश्वर से जब दुआ करें, आए हमारी नजर को परमेश्वर की ओर ही निकाह के रखें, क्योंकि जो भी हमारी जो जरूरत है हमारे जीवन का, केवल परमेश्वर ही उसको पूरा कर सकता है। Hallelujah. It's only God and God alone. और केवल परमेश्वर ही कर सकता God है। is the source of everything. और हमारे जीवन की जो हर एक जो जरूरत है, केवल परमेश्वर उसको पूरा कर सकता है। Now Elijah said it. और मुझे ऐसा एलिया ने ऐसे कहा, You will have it. तुमको मिल जाएगा, But when you see me going up, लेकिन जब मैं ऊपर उठा लिया तब मुझे देखोगे तब मुझे होएगा। that means Elijah is telling to Elisha, That means एलिशा से कहता है be focused. कि अपना ध्यान मेरी ओर लगाना, Keep focused. कि मेरी ओर अपना ध्यान Keep your लगाना, eyes on me. और अपना आंख मेरी ओर लगाना। When we ask God something, let's our eyes be focused onto God and God and God alone. जब हम परमेश्वर से कुछ पूछते हैं, हमारी नजर को परमेश्वर की ओर ही लगा के रखें, केवल परमेश्वर की ओर लगा के रखें। Hallelujah. Don't look here and there. यहाँ वहां ना देखें आप। You know, Satan might try to give something from here and there, but God is the source of your life and my life. यहाँ वहां ना देखें, लेकिन केवल मेरा जो परमेश्वर मेरे जीवन की हर जरूरत को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर वो ही है। Verse 11. और 11वां वचन, And then it happened, और फिर ऐसा हुआ as they continue on and talk, that suddenly a chariot of the fire appeared with horses of fire and separated the two of them, and Elijah went up with a whirlwind into heaven. और वहां पे लिखा है कि 11 वचन में वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिशा भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। I always just imagine sometimes when I'm sleeping, seeing Elijah going in a chariot up, I always think about it. What a scene could have been that. और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितना अच्छा एक दृश्य हुआ होगा कि एलिया जो है, जो प्रभु के उस रक्त जो अग्नि भर रक्त में है और उसको उठा लिया और स्वर्ग की ओर जा रहा है, कितना अच्छा दृश्य हुआ होगा। 12 says like this. और 12वां वचन ऐसे लिखा है, And Elisha saw it and he cried out, my father, the chariot of Israel and his horsemen. So he saw him no more, and he took hold of his own clothes and tore them into pieces. और जो 12वां वचन में लिखा है, और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। Now, Elijah told him something. एलिशा ने ऐसे कुछ बात की है, When you see me going, अगर तुम मुझे देखोगे Take जब it मैं to जा रहा heaven. हूं, जब मुझे उठा लिया जाएगा स्वर्गलोक में, you will have it. और तुम्हें ये मिल जाएगा, You will have it. तुम्हें ये मिल You जाएगा। know, most of the time we think, when the Holy Spirit comes,
comes upon us, we have the goosebumps, we have this, we have start walking, we start shaking, then only the Holy Spirit is upon you and me. कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, हमारे शरीर में कुछ ना कोई हलचल होगा, तभी मेरे अंदर वो अभिषेक, हम ऐसे सोचते हैं। If my hair is like to straighten, then only the Holy Spirit is on me. हम सोचते हैं कि अगर मेरा हाथ को जब खड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। I was just thinking, what must have happened to Elijah? Elisha, sorry. और मैं सोचा एलीशा के पास साथ क्या हुआ होगा उस The समय। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, he verse 14 और चौथा वचन में 13, तीसरा 13वां वचन में लिखा he है, also took up the mantle of Elijah. 14, और उसने एलिया के वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी, that had fallen from him, जो गिरी थी, and went back and stood by the bank of the river Jordan. और पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 14 तो Only 14. Sorry, 13. I'm sorry. I'm sorry. फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई और उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। Now Elisha saw Elijah going. और एलिशा ने एलिया ने देखा एलिशा जा रहा है। Elijah mantle fall down. Elijah's mantle fell down. और जो चद्दर वो नीचे गिर गया। When it fall down, जब वो नीचे गिरा, he took that thing, और उसने उसको उठाया, and the Bible says he came to Jordan River. और कहा है कि वो यरदन नदी के पास आ गया। Now what did he did over there? और उसने वहां पे क्या किया? What he had asked from Elijah, he got it. और जो एलिशा से जो पूछा था वो उसको मिल गया। What he asked from Elijah, he got it. जो एलिजा से जो पूछा उसको मिल गया। Now what did he did with that? और उसने उसके साथ क्या किया? What you asked from God, you get it. और जब आपने परमेश्वर से मांगा, जब आपको मिला, And whatever you pray to God, God gives to you. और जो कुछ आपने दुआ किया, प्रार्थना की, आपको मिल गया। What do I do with what God gives to me? अगर मैं उससे मैं क्या करूंगा जो परमेश्वर ने जो मुझे दिया है? That is very, very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Elisha went near the river Jordan. और एलिशा जो था वो यरदन नदी के पास गया। Now he's sitting over there. और वो वहां पे बैठा हुआ है। Oh, my father is gone. My master is gone. और कहा कि मेरा स्वामी ये भी जा चुका है। Maybe he's thinking, अरे, how do I cross the river now? और वो शायद सोच रहा होगा कि मैं इस नदी को अभी कैसे पार करूंगा? Because the Bible talks about when they crossed the Jordan River, when Elijah struck the river, when they crossed the Jordan River, the water came back again. और यहाँ पे लिखा है कि जब उसने चद्दर को मारा, वो पानी वापस आ गया, लिखा है। Now Elisha is there. और एलिया भी वहां पे बैठा हुआ है। He has the mantle of Elijah. और जो एलिया का जो था वो उसका जो चद्दर उसके हाथ में है। He has it with him. और उसके साथ है वो। What did he do with that? और उसके साथ उसने क्या किया? Oh, my master is gone. कि मेरा स्वामी जा चुका है। Maybe he was crying loudly over there. My master is gone. शायद जोर जोर से शायद रो रहा होगा और कहा कि मेरा स्वामी जा चुका है। Hey, my master Elijah, you left me orphan. You're gone alone. और कहा कि हे मेरे स्वामी एलीशा, तूने मुझे ऐसे छोड़ दिया। मैं अभी मेरा पिता ही नहीं है अभी कोई यहाँ पे। Who's going to divide now? Who's going to depart this Jordan River? और कौन इस जो यरदन नदी को दो भाग में कौन Who's बांटेगा going भी? to part this Jordan River? और ये यरदन नदी को कौन दो भाग में How I am बांटेगा? going to pass through this Jordan River? और मैं कैसे इस नदी को पार करूंगा? Maybe Elisha must be thinking, hey, God send Gabriel, hey, God send Michael, God send some angel to do this thing. और शायद एलिया ने सोचा होगा गैब्रियल को या तो कोई सरदूत को भेजेंगे और फिर ये जो नदी है दो भाग में बट जाएगा। I don't have a boat to cross the Jordan River. मेरे पास नदी में जो पार करने के लिए मेरे पास नाव भी नहीं है। My master left me alone. क्योंकि मेरा जो स्वामी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। Did Elisha did that thing? क्या एलिया ने ऐसे किया? No. नहीं। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, where now is the Lord? Elisha said, where now is the Lord of Elijah? Wow. Verse 14. Yeah. और उसने एलिया की वह चद्दर और उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। Hallelujah. Elisha used what he had.
और एलीशा ने इसका इस्तेमाल किया जो उसके पास था। Elisha used what he asked from Elijah and he got it. He used that and he crossed he departed the Jordan River. और एलिया ने जो चद्दर था उसको मारा और वो दो भाग हो गया और उसको पार किया, और लिखा है कि वो 2 भाग हो गए वो नदी। He used it. और उसने इसका इस्तेमाल किया। We have the anointing of God. We have the talent of God in us. We should use it for the kingdom of God. परमेश्वर ने हमें एक अभिषेक दिया, एक वरदान दिया है, उसके इस्तेमाल हमें परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। We don't need to just sit down over there. केवल हमें उससे लेके उससे बैठना ही नहीं है। After receiving the mantle, after receiving the Holy Spirit, we should do what God has called us to do. और चद्दर लेने के बाद, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक लेने के बाद हमें तैयार होना है प्रभु की सेविकाई करने के लिए। Don't be fool and keep on waiting till the Lord comes and visit you. Oh, then only when God comes and touch me, when I see the white horse, then only I will serve the Lord. मूर्ख मत बनो, जब तक ऐसा ना बोलो कि जब तक परमेश्वर नहीं आएगा या मुझे नहीं छुएगा या तो जब तक मैं सफेद घोड़ों को नहीं देखूंगा मैं कुछ नहीं कर सकता। Jesus said it like this. यीशु मसीह ने ऐसे कहा, If you believe in me, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो, the things I have done, और जो मैंने किया the है, work which I have done, जो काम मैंने किया more है, than that you are going to do. उससे भी बढ़कर तुम करोगे। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe in Jesus? क्या तुम विश्वास करते हो यीशु Do मसीह you believe में? in Jesus? क्या यीशु मसीह The विश्वास same करते Jesus हो? is saying that if you believe in me, the things, the work which I have done, more than that you are going to do. और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझे विश्वास करते हो जो मैंने कार्य किया उससे भी बढ़कर कार्य तुम करोगे। Because I am going to the Father. क्योंकि मैं पिता के पास वापस जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। What we have, जो हमारे पास है we have to use it. हमें उसका इस्तेमाल करना है। God has anointed you. और परमेश्वर आपको अभिषेक God has दिया है। anointed us. परमेश्वर हम सभी को God अभिषेक has किया है। baptized us with His Holy Spirit. परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा दिया The है। same Spirit, Holy Spirit that raised Jesus from the dead, the same Spirit lies in you and me. और जो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को उस कब्र से उठाए, वही पवित्र आत्मा आपके और हमारे अंदर वास करता है। Read the word. प्रभु के वचन को पढ़ो Receive the promise of God. और प्रभु के उस वाचा को आप उसको ले Receive लो the guidance of God. और प्रभु के मार्गदर्शन को लो आप। And last, let's start doing what God has called us to और do. अंत में जो परमेश्वर जो बोले उसके लिए आप कार्य करो। I will finish with this last thing. और एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। Mark chapter 5 verse 1 to 20. और मरकुस का 5वां अध्याय, Chapter 5 verse 1 to 20. मरकुस का 5वां अध्याय और 5 से हम लोग 20 तक पढ़ेंगे। We will not read everything. हम लोग सब कुछ नहीं We all पढ़ेंगे। know the story, okay? हम सभी लोग ये कहानी को जानते I हैं। want to tell you your testimony and what God did in your life and my life is one of the biggest thing where we can go and talk to people और actually. एक ऐसी गवाही जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है, वो जाके हम बोल सकते हैं लोगों के बीच We में। all have a testimony, हम yes? सभियों के जीवन में कुछ ना कुछ गवाहियां हैं। Yes or no? हाँ या ना? We all have a testimony what God did in your life and my life, how God changed me. कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या बदलाव लेके आया, हम सभियों के साथ ये एक गवाही है। We all have that thing. ये सब हमारे पास है। You know, now the Bible says पवित्र शास्त्र कहता है in Mark chapter 5 verse 1, और मरकुस का 5वां अध्याय उसका पहला वचन there was a में, man who was possessed with the evil spirit. और एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी। And the Bible says that he was in the caves, he was with all shackles, he was with all kind of a thing, he was bound actually. और ऐसा लिखा गया कि ये जो व्यक्ति था गुफा में रहता था और उसको जंजीरों से उसको बांध के रखा गया था। And nobody used to come and nobody able to remove him out from this thing. और किसी का हिम्मत नहीं पड़ता था कि उसको वहां से निकालने के लिए, There were demons into him. और क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। Now the Bible says पवित्र शास्त्र कहता है in that verse, let me just read it to you. Verse 6. Yeah. He says when he saw Jesus from afar, he ran and worshipped Jesus. और यहाँ पे 6वां वचन में लिखा हुआ, और वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उससे प्रणाम किया। You know, the Bible says he was like bound with all kind of things. और लिखा गया कि उसको हर जंजीरों से उसको बांध के रखा था। He was dwelling among the tombs over there. और वहां पे गुफाओं में वो पड़ा रहता था। And nobody could bind him, he says, और यहाँ पे लिखा है कि कोई भी उसको बांध नहीं सकता था, with the chains. और वो जंजीरों से उसको बांध नहीं सकते थे। And verse 7 says, और 7वां वचन लिखा when है, he cried out with a loud voice and said, "What I have to do with you, Jesus, Son of the Most High God, I implore you by God that you do not torment me." 7वां वचन में लिखा है कि और उसने और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र,
मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। Verse 8 says like this. और 8वां वचन ऐसे कहा, When he said to him, come out of the man, unclean spirit. और उसने, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। The Bible says when he asked him, what is your name? He answered saying, my name is Legion, for we are many. और फिर उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। And the Bible says, if further you read, the Bible says that he was delivered from all the evil spirit and from all the demons over there. और आगे हम पढ़ते थे, इसमें लिखा है कि प्रभु ने जो उनको हर उस व्यक्ति को हर आत्माओं से उसको छुटकारा दे दिया। And after that, उसके बाद, and the Bible says that this man wants to follow Jesus. और ये जो व्यक्ति था, उसके बाद चंगाई होने के बाद, छुटकारा होने के बाद, प्रभु यीशु के पीछे आना चाहता था। But Jesus said him something over there. और वहां पे यीशु मसीह ने उससे कुछ कहा। Verse 19. और 19वां वचन कहता The है, Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, however, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has compassion on you. और परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी, और उसने उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। Verse 20. और 20वां वचन, He departed and began to proclaim. He departed and he began to proclaim. और वो वहां से गया और वो बार बार उसका घोषणा करता रहा। He proclaimed और उसने प्रचार किया, what Jesus did to him. और जो यीशु मसीह ने उसके लिए जो किया उसका प्रचार And that किया। maybe the whole village, he went here and there and started telling people, Jesus delivered me, Jesus delivered me. हो सकता है कि वो जो गांवों के जो हर एक कोने कोने गया होगा, बोला होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया, मुझे छुटकारा दिया। You know, he didn't went for a Bible school for 4 years, 5 years. He didn't went for any training center. And they said, no, after that I will come and I will share the gospel to everybody. ये जो व्यक्ति था कि कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं गया, या तो 4 साल के बाइबल की शिक्षा पाने के लिए नहीं गया, या तो करने के बाद ही मैं कुछ करूंगा, ऐसा नहीं बोला। Listen to me, I am not against the Bible school, please. मैं आपसे, मुझे ध्यान से सुनिए कि मैं बाइबल स्कूल के मैं Nothing विरुद्ध wrong नहीं to do हूँ, the Bible school. उसमें कोई गलती नहीं We है। should do the Bible school. आपको बाइबल स्कूल करना चाहिए, But don't wait for the Bible school to, and then only then you go and share the gospel to the people. केवल ऐसा ना हो कि बाइबल स्कूल पढ़ने के बाद ही मैं लोगों के बीच में जाकर प्रभु के वचन को बांटूंगा, ऐसा ना करो आप। The Bible says, after delivering, he went and he proclaimed. और यहाँ पे लिखा है कि इस व्यक्ति को छुटकारा मिलने के बाद उसने प्रभु के बारे में प्रचार किया। There is a gospel according to Matthew. There is a gospel according to Luke. There is a gospel according to Mark. There is a gospel according to John. There should be a gospel according to your name also. और मरकुस, मत्ती, ये सब के जो बाइबल है जैसे है, आपका भी एक बाइबल बोलते हैं कि एक सुसमाचार आपका जीवन का भी होना चाहिए। You are the testimony. Jesus said, you go and tell your friends. और आपके पास भी एक अभिषेक होना चाहिए, आपके जीवन में एक गवाही होना चाहिए, अपने मित्रों को जाके बोलो आप। Church, what we have, let us use that. कलीसिया जो आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। What Jesus did to me. प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, How Jesus changed my life. और यीशु मसीह ने मेरे जीवन को कैसे बदला। The Bible, you know, he says he went on doing proclaiming the word of और God. लिखा गया कि ये जो व्यक्ति है प्रभु के बारे में हमेशा हर जगह जाके प्रचार किया। He had his own gospel. He had his own gospel. और उसका खुद का एक सुसमाचार था। You and I, आप और हम, what we have, जो हमारे पास we है, need to use that. हमें उसका इस्तेमाल करना है। Elisha used the word given to him. एलीशा के पास वो जो था उसने उसका इस्तेमाल किया। When there was no food, जहाँ पे कभी जहाँ खाना ही नहीं था, young boy brought over there और 2 fish and 5 loaves. और जो मछली और 5 जो रोटी है, एक नौजवान एक लड़का लेके आया वहां पे। What they have, they gave. They gave. और जो उनके पास था उन्होंने प्रभु के हाथ में सौंप दिया। What we have, we should use that. और जो हमारे पास है उसको हमें इस्तेमाल करना है। Then God will use you and me. और उसके बाद परमेश्वर आपको इस्तेमाल The करेगा, anointing of God is upon our lives. क्योंकि परमेश्वर जो अभिषेक हमारे जीवन में है। And if you say, no, I don't have the anointing, अगर आप बोलते कि नहीं परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर नहीं we है, are ready to pray for you and we are going to see the anointing of God come upon your life. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप फिर देखेंगे प्रभु का आत्मा और उसके अभिषेक आपके That ऊपर है। same spirit that raised Jesus from the dead lies in you and me also. और वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को वापस जी उठाया, वही आत्मा आज हमारे बीच
बीच में है। Elisha received the double portion anointing of Elijah. और इलाई ने जो एलिया जो था उसने दुगना जो अभिषेक था जो एलिशा के ऊपर था वो पा And the लिया। Bible talks about he went and keep on doing good actually. और लिखा गया है कि वो उसने उस अभिषेक को पाया और वो अच्छा और भला काम करता रहा। He went on doing miracles, he went on doing healing, so many places over there. और चिन्ह चमत्कार लोगों को छुटकारा देता रहा हर एक क्षेत्रों में जहां भी हो गया। Church, कलीसिया, are you ready to use what you have? क्या आप तैयार है जो आपके पास है उसको Are you इस्तेमाल ready to करने के use लिए? what you have? जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या Do आप not तैयार हैं? underestimate yourself. आप अपने आप को ऐसे ही छोटा मत Will समझिए God use me? कि प्रभु मुझसे मेरे Let इस्तेमाल me कर। tell you one thing, God's word is final. When Jesus said, if you believe in me and the work which I have done, more than that you are going to do, that's final. और प्रभु का जो वचन है वो अंतिम है, क्योंकि अगर प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े कार्य करोगे तो वो अंतिम है, वो फाइनल है। But our walk with the Lord has to be very good. लेकिन जो प्रभु के साथ जो हमारा चाल चलन है वो सही होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's use what we have. और आज हम इसका इस्तेमाल करें जो हमारे पास है। Let's all stand up in the presence of आइए God. हम सब खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति।